working with our back to Coral Draw after so much time. Yeah, came back for more, right? So let's go and complete our Coral Draw. And earlier we had created a few works. That is this oil one, owl one, right? And wedding card we had done this, right? Other than that, we had done some more works, right? On business cards or something, poster. Yeah, single fold book. We had completed that one. Okay, there are four to five works, four to be exact work we had done, and now we are going to work on our magazine work, right? So for this, what I'm gonna do is one poster is also done. That's why I said five. So all right, we had completed five works to be exact, and then now we are going to work on the page layout. Why? Because we had already done single works earlier, right? So we had done the single work, single page works. Now if you wanted to work on multiple page, what you will do? So magazines, catalogs, and a newspaper, these are the other works. Okay, so we are going to cover today magazines, right? Mag magazine, 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 magazine. It's a magazine, magazine, magazine. It sounds almost like an African people. Magazine, magazine man. They that will be Japanese. So yeah, that accent which came up with magazine is actually an African accent. I've heard it before when I was in Delhi, and that person came to me. He was from, yeah. He was like, "Where's the map, man?" And I was like, "What did you say?" He actually wanted to know how to go from how to get to their to the Dwarka. We were in Uttam Nagar, but he wanted to go to Dwarka. So he was asking me that how do I go to that station. So he could not able to pronounce Dwarka. That is for sure. So he was like, do wa do wa raka. No, he was not on raka. He was like raka. So he was dimwa raka. So I was like, what you are saying, man? Where do you wanted to go? So he said ki I could not able to understand. I told him that I do not able to understand the accent. So what you can do is you can go over in the backside of the there is a place in the subway station. I showed him the way that from there you can actually get the map where you can select your station where you wanted to go and which train you need to board on. So what he said is that I told him that go over there. There you will find the map. And because of the British, no, because they act. He understood later, but because we are from the India and we have the accent which is given to us by the Britishers. Okay, so we tend to pronounce everything. So we do not say map, we say map, right? And because we have in our vocabulary, we have a and a both in our vocabulary. That is why we tend to pronounce map because there's a single a there, right? So we I just told him that that's a map there. You can check that on. So what he said that I'm sorry, I could not able to understand, man. What did you say? So I told him that listen, there's a map, the map where you can. I actually literally showed him that there's a map where you can actually get where. So then use a map. I said the map, yeah, man. And I completely picked on to that, and I just told him, yeah, man, the map, exactly, the map is there. Go. And he was like, "Oh, cool, cool. Thank you, thank you." Finally, he came to him. But I tell you, the people, African people, they are basically Nigerian, African, or from those soft. They are very much friendly,
and you can easily have a good communication with them because they could actually connect with you emotionally as well. But Australians, Americans, and Britishers, Americans, I can get on along with them. Britishers, a little bit of them, but Australians, you can't get along. They are completely different. I've got the chance to talk to two Australian uh, women. Both of them were women, and one has lost her bag in a train. They actually uh, get on get away from their seat, and they actually went for the water, and they forgot that bag in the train, and the train actually left the place. And I was in Mumbai, and they came to me and they were asking about where do I could you know that from where we can actually complain for the bag. And because I just came out of the it was morning time, and we spent about a whole night in the train, so I wasn't even having a right mindset there. So I didn't took a brush or anything. We just went there. We were right in front of the luggage carrier so that we could take our luggage from there. And they suddenly came and asked, and I was the in my troop in our group, I was the only one who could communicate in English. Others can't, right? So she was asking about the bag, right? And whenever I told her, you won't find your bag here, she could not able to understand this accent. I don't know why, what Australians speak, because I know their accent is completely different. So they are half German, half Australian kind of accent they use, right? So every time when I say the bag, they won't understand the bag, right? I don't know what bag it is. So they were I completely could able to understand their language. I mean their accent. I could understand that completely. I catch up to that, but I don't know whether I was pronouncing it low because I haven't brushed and I was pretty much conscious about the breath. Is that the reason, or probably I was not opening my jaw back then. It was like I was early, right? So I don't know. What's giving the idea to her that she could not able to understand the accent, because they were listening to me. And whenever I'm saying you won't find your bag here, no, I was trying to, but I did not have pen and something to. Phone was not existent at that point. Do you know that it's probably look, phone was there. There was a mobile phone, but not for the general people, because only the higher classes, above higher classes, could afford the phone. At we were at, yeah, you don't know. No, it's definitely it was be. I am born in '88, and I was 18 to 19 years old that time. So it is probably about 98 or 2007. But there that point phone was not that this much up to dated that we can actually use it such frequent. And smartphones was like non-reachable to us at that point. We were having phone, but binary colorful phone, semi colorful phone. So we do not have that facility that we could. Nowadays we can do that and in any time, right? We can even type on this one, but that time we do not. We were having buttons type phone, and we was using that. So they didn't understood my point, but my troop could not able to, because there was woman girl was also there, where they could not able to understand what they were saying. That's why they asked me to talk to them. So when I talked to them, I came to know that bag is not there. What is bag issue was there. So then I called those girls and I told them that this lady do not is having a problem with her bag. इनका bag खो गया है, and they need they were actually they came for the luggage counter, and the person over at the luggage point
is also not could also not speak in the language in the English, right? So he was, when we asked the person that इनका bag खो गया है, where is the bag, कहाँ मिलेगा, तो he said कि यहाँ नहीं मिलेगा, this is the place where we, where your bag, this is locker room, you're putting right, but that bag is lost and found counter, you can go to there. So we told them that you need to go to lost and found. They do not understand, right? Yeah, so that's why I asked those two girls. I told them, look, she could not able to understand, right? And I could not go directly up front to them. You guys can communicate, because I was having, like, I need to brush and everything in order to speak loudly. So I told them to, ये issue है, पेन मांग रहा था, पेपर मांग रहा था, किसी के पास नहीं था. सो आई जस्ट टोल्ड देम कि एटलीस्ट उनको ये बताओ कि इनका वहाँ मिलेगा, देयर यू विल फाइंड दी. बट उसको कौन समझाए, देयर वाज हर हर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाज देयर, बोथ ऑफ देम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, बट हस्बैंड डिड नॉट वांटेड टू कम्युनिकेट, only the woman wants to, right? So there I came to conversate with both of them. One I met in the Durg, when I was living in a hotel, and I was living in a hotel when I was in 12th, and the couple came to visit Durg, and that time, yeah, actually they came for a whole visit for the India visit, so they came there, right? So this time I'm taking 4 pages, right? And you can select multi-page view, right? And सारा कुछ वैसे ही रहेगा. मल्टीपल पेजेस है, तो उसके हिसाब से कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इससे कोई कलर डिफरेंस नहीं आता है, बस वो कन्वर्ट कर देता है उसको. एंड वी गॉट पेजेस, मल्टीपल पेजेस व्यूज में हमारे पास, ऐसे ही समझ लो ये 100 हैं, ठीक. सो वन, not page one, actually that woman I was telling you about was actually she understood the accent, right? She was also from Australia, and she actually wants to get a mosquito coil, because she was having a lot of mosquitoes in her place, usual India, right? So she could not able to sleep, so she was asking that is there something such as mosquito repellent. So I told her that you will not get mosquito repellent over here, and I asked others, क्योंकि उनको नहीं आ रही थी, तो I asked them कि भाई आप इनको coil दे दो. When they put, oh, then she completely understood कि अरे ये तो पुराने जमाने की चीज़ है, right, right. And then was yeah, she understood, but that woman don't understood, and the worst, I should say, I found a Russian guy, right? He was like, I was in Vizag and Visakhapatnam. I was in Vizag, I was in a hotel, and that hotel is pretty posh, and that's why they have this Russian woman and Russian men over there, like roaming, like like it is from Russia or something. Like there are a lot of there. So I was standing there with my wife, and I was having a conversation that let's go outside or something. He barged right from the door, and he actually gave me a shoulder bump, right? Right. So he gave me a shoulder bump, and I was, because it was he was really fast, and yeah, he's a Russian dude, man, right? He's a bear kind of man. So he just gave me a bump, and I was like, oh my, what are you doing, man? No, I was like, what in the world are you doing that? And he was like, he just gave me that, or he was then cursing all along with Russian accent, and he was saying, "Ah," karte hue, he went. I was like, man, what is this? What is happening? Literally, and that the person, ना मैं क्या बताऊँ वो, बाप रे. No sorry or no nothing. He was like, oh, mother Russia.
यू कांट डू एनीथिंग राइट, उनका ऐसे ही रहता है। आई फ्रॉम मदर रशिया, यू गेट गेट वॉट एवर यू वांट, वी आर फ्रॉम रशिया। सो उनका ऐसा था। इट वाज क्वाइट अ ट्रिप। सो घूमने का चांस बहुत लगा, लेकिन मैं कभी घूम नहीं पाया उतना अच्छे से, क्योंकि मैं जितनी भी जगह गया सब जगह मुझे ऑफिशियल काम ज़्यादा। वाइजैक बस एक एक बार मैं मतलब वी वेंट, हाँ स्पेशल हम घूमने गए थे, फैमिली ट्रिप था तो वहाँ गए, अदरवाइज दोबारा कभी नहीं। केवल वाइजैक, बाकी उसके अलावा जितनी जगह मैं घूमा हूँ मैं ही घूमा हूँ। और उस समय तक आई वॉजंट मैरिड, सो मैरिड के बाद से मैं कहीं नहीं गया। फिर तुम लोग को लेके जाऊंगा। और नेक्स्ट टाइम आता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, मेन इशू ये रहता है कि वहाँ पे कितने चोर हैं कितने वो हैं, वो नापना रहता है। अब मुंबई जाओगे तो मुंबई में आपको चोरी करते हुए नहीं मिलेंगे, जितना मुंबई बदनाम है इस चीज़ के लिए ना, वो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है वहाँ पे। हाँ नहीं, डरने का इशू नहीं है एक्चुअली, देखो सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपका जो वो है ना, क्या बोलते हैं, मुंबई भी इतना ही शांत मिलता है मालूम है। मुंबई कल्याण एरिया भी चले जाओ, जो सबसे पुराना एरिया है, वहाँ भी जाओगे ना, रहोगे तो ऐसे ही लगेगा। बस प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ चार रायपुर एक कल्याण के अंदर है ना, तो वो इतना बड़ा हो जाता है, और आप लोकल पब्लिक यूज़ करोगे ना तब इशू है, लोकल ट्रांसपोर्ट्स में। ठीक है, आप देखो, नहीं तो आप टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप बस अफोर्ड कर सकते हो, और वो टैक्सी में जाओगे तो न्यू दिल्ली। अब आप जाओगे, अगर टैक्सी अफोर्ड करोगे ना तो एक बार का 200-300 खर्चा है, तो एक बार में तो अफोर्ड कर लोगे पहली बार में जाना, लेकिन रेगुलर में नहीं जा सकते। तो जब मैं गया था तो इट वाज लाइक पास बनवा लो, या फिर तो दिल्ली में पास बनवा लिया था। और मुंबई में क्या है, वो मिल जाता है पूरा, आई गॉट द टिकट बंच, वो खरीद सकते हो आप। टिकट बंच खरीदो, पंचिंग में लगाओ, कट करके चले जाओ। वहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम की बात जो मैं कर रहा हूँ वो ये है कि वहाँ का हर व्यक्ति आपको सिस्टम में फंसा के पैसा लूटता है, ना कि ये। तो अगर आप तो अगर आप सिस्टम के अकॉर्डिंग रहोगे ना तो कम चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आप पंच करके अंदर जाओगे तो आपसे कोई पैसा खर्चा वो नहीं होगा, आपके पास पंचिंग टिकट है। लेकिन आप सोचोगे कि मैं 2 मिनट के लिए अंदर जाके बाहर आके पंच कर लूंगा या कुछ ऐसा कर लूंगा, या पंचिंग मशीन उस तरफ है इधर नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। आपको ऑल द वे थ्रू होते हुए जाना है। अगर आप सोचे कि मैं वो पंच करने ही जा रहा हूँ सर, ये है मेरे पास, मतलब दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल, वो तुरंत पंच भी नहीं करके देगा। हम हैं ही ना ये, वो रहता है। ऑल राइट, सो ऑन आवर मैगजीन पॉइंट हमने ऑलरेडी, मैगजीन पॉइंट पे देखते हैं, हमने ऑलरेडी 4 पेज यहाँ पे बनाए हुए हैं, और जो हमारे मल्टी पेज व्यू के अकॉर्डिंग हमको मिलता है, वो पेज व्यू यहाँ से चेंज भी हो सकता है, राइट। अगर यहाँ से ऐसा कुछ कर दूँ तो लेआउट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वाई इट्स नॉट चेंजिंग, हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट फॉर सम रीज़न ये मल्टी पेज व्यू जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। प्रॉबेबली आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं हो रहा है तो फिर वापस से जाके लेआउट करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी है। पर चलो यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, हमारे पास ऑप्शंस हैं।
और ये गैप की टेंशन नहीं है। अभी फ़िलहाल है ये सारे पेजेस एक समान हैं, ठीक। तो जब आपको मल्टीपल पेज व्यूज़ चाहिए तब आप काम कर सकते हो। अब लेट्स जस्ट से मैं यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ और एक हेडर और फुटर बनाते हैं। ये मैगजीन के अंदर की बात है, कवर की बात नहीं हो रही। कवर तो सिंगल फोल्ड तरीके से बनेगा, दैट यू नो, ठीक। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल गिव इट अ लोगो की पोजीशन के लिए, ठीक। और ये हमारा हेडर हो जाएगा, यानी यहाँ पे नाम और पृष्ठ नंबर, पृष्ठ संख्या वो आ जाएगी। नहीं, उसमें ग्रेडियंट रहता है। हाँ, नहीं तो उसका हम करेंगे। एक्चुअली में पृष्ठ संख्या और उसके लिए हमने दिया है, ये जनरली मैगजीन्स में जाते हैं ना तो ये ऐसा हो जाता है, बहुत छोटा पतला सा, है ना, एक पॉइंट आ जाता है और नीचे पे यहाँ पे इंफॉर्मेशंस और उसके लिए एक पैनल दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक। अब इसका ग्रेडियंट फाउंटेन फिल एक अप्लाई कर दीजिए और एक बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी वाइट कलर पे आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ ऑप्शन है और हम इसको थोड़ा सा विनियट टाइप का रख लेते हैं यहाँ से। विनियट, विनियट का मतलब होता है आजू बाजू जो है ना वो हल्का डार्क शेड हो, ठीक। और ये जो दिख रहा है ये थोड़ा सा, और वाइट जो कलर है ये भी हल्का सा थोड़ा सा डार्क शेड हो, ताकि ये ऐसा कलर आए, ठीक। अब वो ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, डिपेंड करता है उस समय के कलर और रेंज के ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे हमें चाहिए है कि ये मल्टीपल पेजेस पे ये चीज़ तो हमेशा अप्लाइड रहे। इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये सब जगह चाहिए, ठीक। इनके आउटलाइंस मैं सॉरी सेट आउटलाइन कलर अलग कर देता हूँ। अब ये सब जगह चाहिए। अब ये तो चार जगह है तो मैं तो डायरेक्ट पेस्ट कर सकता हूँ, बट व्हाट इफ आई एम वर्किंग ऑन लाइक 100 पेजेस और 60, तो मेरे पास बेस एक ही रहेगा, तो बेस मुझे सब जगह चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे मेरे पास मास्टर लेयर ऑप्शन रहेगा, ठीक। और ये लेयर वन या पेज वन के अंदर, लेयर वन के अंदर ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मुझे बस इसको शिफ्ट करना है मास्टर लेयर पे। जब मैं मास्टर लेयर पे इसको रखता हूँ तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, मास्टर लेयर पे। तो जब मैं अब यहाँ पे कोई चीज़ बनाऊंगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो है कौन सी, कि शेप जो है वो ऊपर नहीं आ रहा है, और ये ऊपर आएगा भी नहीं क्योंकि ये टॉप में है इन फ्रंट ऑफ समथिंग, तो भी ये काम नहीं करेगा। तो इसलिए जब लेयर बनाते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो हमेशा अलग रखते हैं, ठीक। और क्यों रखते हैं, रीज़न है क्योंकि जो चीज़ सब जगह अप्लाइड होगी ऑन टॉप ऑफ इट वही वहाँ पे रहेगी। इसलिए कैटलॉग हो गया, आपका जो मल्टीपल पेजेस की स्टोरी बुक्स होती हैं, ये सब कुछ जिसमें कोई चीज़, अब जैसे यहाँ पे नंबरिंग है, नंबर को ओवरलैप करने वाली कोई चीज़ नहीं है, वही सब चीज़ों को ओवरलैप करेगी। नेम जो नंबर हो गया ये चीज़ सबको ओवरलैप करेगी, करेक्ट। तो इसीलिए वो चीज़ स्टोरी बुक्स और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ आता है। पीछे रख देंगे तो कंटेंट ओवरलैप कर लेगा लोगों के ऊपर, नंबरिंग के ऊपर नहीं ना, नंबरिंग के ऊपर तो टेक्स्ट नहीं डाल सकते। तो ये उन सेक्शंस के लिए जिन सेक्शन को हमें छूना नहीं है, ओवरलैप नहीं करना है, तो वो चीज़ हमेशा ऊपर रहेगी, ठीक। अब इसको इसका जो बैकग्राउंड है इसको बस मैं लेयर वन के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि हम मैगजीन बना रहे हो, मैगजीन में बैकग्राउंड अलग अलग कलर के हो सकते हैं, ठीक। इसलिए उसके पेजेस भी कभी 100 पेजेस की मैगजीन मिलती नहीं है। मैगजीन जो है वो कम ही पेजेस की मिलती है, क्योंकि उसमें बार बार होता है। और स्टोरी जो होती है, स्टोरी बुक,
उसमें आपको बैकग्राउंड रहता ही नहीं है, तो इसके कारण से वो आपको 400 पेज की भी मिल जाएगी, क्योंकि सब में वो बस टेक्सटिंग चेंज करना रहता है, बाकी बेस सारा रहता है, तो ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं। ठीक, तो एक पॉइंट ये हुआ। नाउ इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग ओवर हियर, अब आप इसको पेज अप करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। अब मान लो यहाँ पे कोई टेक्सटिंग है, और इसको मैं कर देता हूँ लॉक। ठीक, और प्रोबेबली इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ कंटेंट, तो अभी तो खैर कॉपी एंड पेस्ट कर सकता हूँ। अब देखो डायरेक्ट पेज 2 पे आ गए, पेस्ट। नाउ एज यू कैन सी वापस से सारे डिटेल्स चले गए। रीज़न ये है कि आपने जब इसको यहाँ पुट किया ना तो उसको लॉक नहीं किया। इसको लॉक कर देंगे ना तब फिर आपका, हाँ डेस्कटॉप को लॉक करना पड़ता है, ठीक, तभी वो आता है। डेस्कटॉप एक्चुअल में इस एरिया को बोलते हैं, ठीक है, पेजेस एरियाज को डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक, तो अब मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक, ये हमारे पास चलो एक लेआउट पे कंप्लीट आ गया। हालांकि ये चीज़ मैं एक और जगह से कर सकता हूँ, मालूम कहाँ से? अगर मुझे सही में 70 पेजेस का बैकग्राउंड बनाना है तो मेरे पास ऑप्शंस हो गया, कोरल ड्रॉ के ऑप्शन पैनल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और डॉक्यूमेंट में जाऊँगा, इसमें बैकग्राउंड में जाऊँगा, और बैकग्राउंड में जाके मैं यहाँ पे सॉलिड करूँगा, तो मैं एक कलर दे सकता हूँ। ठीक, और इसको अगर मैं ओके कर देता हूँ तो वो सब जगह अप्लाइड हो जाएगा। ठीक, सॉलिड, राइट, पर सॉलिड। अगर मुझे यहाँ पे लेट्स जस्ट से मुझे बैकग्राउंड की जगह इमेज डालनी है, तो आई कुड गो ऑन एंड टेक एनी इमेज। हो सकता है मुझे वो इमेज ट्रांसपेरेंट डालनी हो या कुछ, तो ग्रेडियंट का एक पैटर्न बना लूँगा, और डेस्कटॉप में सेमिनार के अंदर लेट्स जस्ट से वी हैव समथिंग लाइक दिस, आई विल पुट इट राइट ओवर देयर और ओके कर दूंगा। सी, है ना? तो वो पैटर्न बैकग्राउंड अब ग्रेडियंट की इमेज बना के सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो वो मेरा एक फेस हो गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो नाउ एवरीथिंग इज इन पर्टिकुलर एरिया। नाउ अब हर पेज में तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना डालते हुए हम बेसिकली इसमें लेट जैसे कि टेक्सटिंग मैनेज कैसे करते हैं और शेप मैनेज कैसे होता है। ठीक, तो ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, आई मीन एरिया को सेलेक्ट करते हैं, बाहर कर देता हूँ, इसको एक कलर दे देता हूँ, सेट आउटलाइन कलर विच इज नन, और लेट जस्ट से मुझे टेक्स्ट कहाँ डालने हैं तो वो मैं इस टेक्स्ट टूल से पुट कर सकता हूँ। यहाँ पे केवल टेक्स्ट टूल है, बाकी तो टेबल बनाने के लिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो एक नया टेक्स्ट बन जाएगा, एक क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो दूसरा टेक्स्ट बन गया। ये पैराग्राफ टेक्सटिंग है। ठीक, अब यहाँ से कोई कंटेंट हम निकाल लेते हैं। मैगजीन, ठीक, मैगजीन अलग अलग टाइप की होती हैं, वो सारा कंटेंट, और विकीपीडिया से निकालेंगे तो जनरल काफ़ी भारी कंटेंट। क्यों पसंद नहीं आया? क्यों? अच्छा तो है। तो अभी क्या यूज़ करते हो? और इसी में सबसे ट्रुथ कंटेंट होता है। नो, यू विल फाइंड क्यूम नाम होगा यार, मैंने ना बनाया हुआ है। मैंने सारे सर्च इंजन्स में बनाया हुआ है, तो क्यूम नाम का मैं डेफिनेटली कुछ एडिट करके डाल दूंगा।
बस यही शायद अभी बचा हुआ, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट डालना था ना उसमें, तो इसलिए मैंने ना बोर आउट ऑफ। वन डे, वन डे डेफिनेटली इट्स यूनिवर्सल फिनोमेना बना सकता हूँ मैं, कि आप सब उस चीज़ के लिए सर्च करना चाहें। आई कुड क्रिएट दैट। इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर मी। इट्स नॉट दैट हार्ड फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि मुझे, अगर मैं ज़ीरो मार्केटिंग पे हमारा इतना ज़्यादा हो गया है कि अब मैं गूगल पे डायरेक्ट सर्च मार रहा हूँ तो मेरे पास कंटेंट सर्च हो रहा है। नो मैटर ऑन दिस पीसी, आप किसी भी पीसी में मारेंगे तो आपको मैं ही दिख रहा हूँ। तो दैट मीन्स अगर मैं विकीपीडिया में बना देता हूँ, मैं हर बार भूल जाता हूँ, अब मुझे याद आया विकीपीडिया का बनाया था मैंने मालूम, लेकिन पूरा लिखना इतना बड़ा बड़ा भारी भारी शब्द मेरे को कंटेंट राइटिंग बोर लग रही, लेकिन आई आई मैनेज टू क्रिएट इट, तो बस पब्लिश करना छोड़ दिया था मैंने। अब देखो यहाँ पे आपके पास टेक्सटिंग आ गई, और यू कैन एक्चुअली चेंज ऑन वॉट एवर साइज यू वांट, आप उसको सेट कर सकते हो। बट मान लो अगर आपने कुछ कंटेंट जो है वो थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पैनल दिखाने लगेगा कंटेंट ज़्यादा है। अब मुझे थोड़ा बड़े साइज में चाहिए, लेकिन कंटेंट पूरा दिखाना है, लेट्स से 36 और 24। लिखता ही नहीं है, है ना, इमेजेस ग्राफिक्स होते हैं, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलेगी। तो मुझे आधा कंटेंट इधर दिखाना है, बट आई डू नॉट हैव एनीथिंग वेयर आई कुड डू दिस। तो उसके लिए हमारे पास टेक्सटिंग होती है। टेक्स्ट का ये जो ग्राफ है इसको लिंक किया जा सकता है। ठीक है, लिंकिंग के लिए हमारे पास हाँ, इधर से इसको लिंक कर सकते हैं हम। सिंपली इस पे क्लिक करिए और दूसरे पे क्लिक कर दीजिए, तो लिंक हो गया। ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ पे सम प्रोफेशनल का सम गायब कर दूँ, नीचे आ जाएगा। ठीक, अब लिंक हो गया। अब लेट जस्ट से मेरे पास कोई इमेज है जो मुझे यहाँ पे लेके आनी है, सो इफ आई जस्ट इंपोर्ट द पर्टिकुलर इमेज, और प्रिंस का बकवास सा वर्क है इधर, and we've got this image, right? And I want this image to be portrayed in the center of this. So सबसे पहले right click, power clip, put it inside, extract, edit, और select, ठीक, finish, and we've got something like this. But now as you can see whenever I'm putting it, either ये पीछे जाएगा या आगे जाएगा, प्लस उसमें से मुझे वाइट या ब्लैक यूज़ करना पड़ेगा, तो ओवरलैप हो जाएगा कंटेंट। बट अगर मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, फिनिश। अगर मुझे ये चाहिए कि मैं इसको इधर रखूँ और ये टेक्स्ट अपने आप से इसके अराउंड एडजस्ट हो जाए, तो देन मुझे क्या करना होगा, इसको टेक्स्ट फ्रेंडली या वार्प टेक्स्ट करना पड़ेगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए वार्प स्टाइल किस पे है, नन पे। जब ये कॉन्टोर पे आता है दैट मीन्स टेक्स्ट इसके बॉर्डर पे आएगा। ठीक, स्क्वायर पे आता है तो यानी उसकी शेप को वो स्क्वायर यानी बॉर्डर शेप को स्क्वायर में कंसीडर करेगा, यानी कि टेक्स्ट जो है वो उसको स्क्वायर में डील करेगा। टेक्स्ट फ्लोज लेफ्ट कर देता हूँ ऑन, so then if I put it right over here you can see text is gonna flow on left side, right? अगर इसको मैं right कर देता हूँ तो text will flow on right side, so it could be something like this, है ना? Just to arrange, just give me a moment. हेलो, उस बैच में जसप्रीत और युवराज तो 10 जनवरी तक गायब रहेंगे ना, युवराज को उधर डाल दीजिए मैक्स में। जी, आस्था के साथ, और जसप्रीत को तो आउट करना है, होल्ड पे करना है। जी, होल्ड पे रखिए। और प्रीमियर का बैच जो है वो कंप्लीट हो गया है, इस वीक रहने के, ठीक है, करेक्ट है। और ऐश्वर्या को डाल, ऐश्वर्या में इन लोग
लोग को डाल दीजिए, अमूल लोग को। अच्छा वो भी वहीं जा रही है, हाँ तो अलग कर दीजिए, फिर वो बैच अलग हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ ठीक है ना, तो वो ठीक है, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। ठीक, और बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा, अभी तो कोई बड़े से। हाँ ठीक है ना, वो पेयर तो है ही, अभी क्लास ही ले रही है, हम लोग कनेक्ट, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके बस उतना ही रखना है अभी जी। ओके ओके, थैंक सर ये क्यों? यू। इसके नीचे बेस था, तो इसको आप किसी भी पोज में सेट करके ड्राइंग कर सकते थे, बट मैंने देखा है कि जब इररिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास जाता है, बेकार पूरा होता है। गड़बड़ हो जाता है They ना even इसलिए। ruined this one for me. क्यों? इसकी तलवार अलग कर दी, फेंक दी। सर यहाँ पे कुछ मत रखो, सामान रखो घर It पे। cost me 25,000. कितना? 25,000. 100 होगा शायद। Higher than. Now you will say कि oops. आपने क्यों खरीदा है? भाई सिंपली ये है मेटल गियर राइजिंग रिवेंजेंस, हाँ। ठीक है। I bought it straight that from China. चाइना में भी 25,000 का मिला? 2500 युआन का, करेंसी कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 10, इट बिकेम्स 25,000। 25,000 का आपने खरीदा है ये? इसका इंडियन प्राइस देखोगे, बहुत ही होगा ना। इंडियन प्राइस जाओगी तो भी उतना ही पड़ेगा। ये नहीं एक्चुअल, मतलब अगर आप इसको यहाँ पे बेचोगे तो 25,000 में थोड़ी बेचोगे। नहीं क्योंकि भारत में एक्शन फिगर्स पे खर्चा कर, एक ही एक्शन फिगर मैन्युफैक्चरर है भारत में, बेंगलोर में, और वो जो भी मैन्युफैक्चर करता है ना, वो हम इतने स्केल का हम 20-25 हज़ार में बेचते हैं। एक्सपोर्ट वगैरह के चार्जेस, इंपोर्ट के भी चार्जेस होते हैं तो ऐड करो। नहीं अगर हम बनाएंगे तो डेफिनेटली हम उसको 20-25 हज़ार में ही बेचेंगे, तो हमारे यहाँ जो भी ये होता है, आप जनरल भारत का मार्केट जो है वो 700-800 से ऊपर नहीं जाता है, तो वो कोई नहीं खरीदेगा, ये प्रीमियम भाई आपने कंटेंट। क्यों खरीदा? हमें भी वही लगेगा। इसका रीज़न मैं बताता हूँ। पहली चीज़, आपको ये बिकॉज बहुत हर पसंद है। हर एनिमेटर के डेस्क पे एक एक रहना एनिमेटेड चाहिए, कैरेक्टर वही होना वही चाहिए। वही। पहला चीज़, इसको मैं किसी भी मॉडल किसी भी इसमें चेंज करके मॉडलिंग कर, स्केचिंग कर सकता हूँ, हाँ। पहली चीज़। इसका पूरा वो है, स्टैंड वगैरह सब कुछ था, सारा कुछ फेंक दिए लोगों ने। वाह। वो तो प्रोडक्शन के दो दो तीन लड़के थे, सर बहुत पास थे। पैसा लो उनसे। हाँ, पैसा तो लो थोड़े तो। भाग गए ना छोड़ के, इंस्टीट्यूट छोड़ दिया उन लोगों ने। एंड आई नो, वाह। क्योंकि फ्रॉम, क्योंकि whom do I blame, क्योंकि कोई भी उनके लिए वो बोल नहीं रहा था, है ना, तो आई आस्क्ड देम आपको कि ऐसा लगा होगा मैं यहाँ ज्यादा समय बिताता हूँ तो कुछ थोड़ा रहना चाहिए। probably I gave it by, actually I trusted that कि these are, they were also my students, so I हाँ। thought कि they थोड़ा will be सा motivated मोटिवेटेड, by हाँ। me कि भाई ये चीज़ I put it for their place, हाँ तो वही। ज़्यादा अच्छा लगेगा, but they were very much अगर मैं immature। ऐसा कुछ लाती तो मैं इसको शोकेस के अलावा कहीं रखने की हिम्मत नहीं करती। राइट, एक्चुअली वो पूरा सेंटर ही उसकी वैल्यू नहीं समझ पाया, दैट इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ वर्थ समवन सैलरी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा महंगा था वो। हाँ काफी तो महंगा। एक तो ये रीज़न था, दूसरा ये रीज़न कि ये एक्चुअली कंपनी का है, मेटल गियर राइजेंस रिवेंजेंस फॉक्स कंपनी जिसने गेम बनाया है, हाँ उन्होंने उसका इसको ही है रिलीज़ किया कॉपी है, है। हाँ तो हमने उसी से लिया हुआ है, तभी। प्रीमियम कंटेंट के कारण इसकी वैल्यू इतनी ठीक। ज़्यादा है। तो धूल खा गया बेचारा यहाँ पे। मैं वही देख रहा हूँ कि मतलब कितना ड्रास्टिक चेंज है ना आइडियोलॉजीज में। तो चाइना बगल का देश है, हाँ। वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू वर्थ समथिंग है, मतलब वो लोग पागल हैं इन चीज़ों के लिए। हाँ। और एक हमारा देश है, वहाँ अगर कोई भी चीज़ उनकी वैल्यू से अलग की दिखती है तो तो हम उसकी उसको कोई नहीं कोई वैल्यू वैल्यू नहीं कर, करते हाँ। हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई विश टू go outside, because they are valuing every effort we are putting. That is why we are going to, right? So text जो है वो float करेगा, एंड स्क्वायर यानी कि वो उसको स्क्वायर जैसा डील करेगा,
जस्ट लाइक अ बॉक्स। ठीक, जैसा न्यूज़पेपर्स वगैरह में होता है। टेक्स्ट फ्लो लेफ्ट कर देता हूँ कॉन्टोर पे। करेक्ट। नाउ अगर मुझे लेआउट मैगजीन के लेआउट जैसा देखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पेज लेआउट पे जाना होगा। एंड यू विल फाइंड लेआउट के अंदर ढेर सारे पेज लेआउटिंग ऑप्शन है। इनमें से पेज लेआउट एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप ऑप्शंस पैनल पे आ जाओगे, जो यहाँ से भी एक्सेस होता है। लेआउट के अंदर पे जाओगे तो फुल पेज मिलेगा। ठीक, फुल पेज एज इन इट व्यूज लाइक दिस। और अगर इसको बुक जैसा कर दोगे, जो कि मैगजीन का बुक होता है, तो वो 1 2 2 3 ऐसे आएगा। ठीक, अब इसको मैं राइट साइड पे रखता हूँ और फेसिंग पेजेस ऑन कर देता हूँ, यानी कि इसकी पोजीशन फेस के पेज के अकॉर्डिंग होगी। ओके करूँगा तो यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंट। पेज 2, पेज 3, पेज 1 बड़ा अजीब सा, वो हाँ काफी लंबा लंबा लगता है। काफ़ी लंबे साइज के लग नहीं रहे दिख हैं, रहा है एक्चुअली, है ना। नहीं दिख रहा। हाँ, ये पैम्पलेट जैसा, ब्रोशर जैसा लग रहा है, राइट। जब इसको मैं लैंडस्केप कर देता हूँ तो भी अब ये बराबर लग रहा हाँ थोड़ा थोड़ा। है ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के हिसाब से वो सेट होता है। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ है, मैं डॉक्यूमेंट ग्रिड पे जाऊँगा और इसको अनलॉक करूँगा और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इधर कर दूँगा। और देखो वो सारे काफी डॉक्यूमेंट्स में आया नहीं है, और जो आप देख रहे हो वो बाकी व्यूज़ में गया भी नहीं है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, यहीं पे लॉक रहने देता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमारा जो मल्टी पेज व्यू है ऑल पेजेस में बदला हुआ है ना। तो अभी ये मल्टी पेज व्यू पे है। इसको जाके ना चेंज करना होगा इसका व्यू। सो वी कैन गो अप टू व्यू और पेज बॉर्डर ग्रिड, यहाँ पे मल्टी पेज व्यू कहीं दिख रहा है, मल्टी पेज व्यू, मल्टीपेज व्यू पेज सॉर्टर व्यू, एंड देन यू विल फाइंड दैट ओवर हियर। तो ऊपर दबाए ऊपर। इसको पेज सॉर्टर ऑफ और मल्टी पेज ऑफ कर देंगे। सिंगल सिंगल व्यूज So, दिखेंगे। अब क्या होगा, वो ऐसे आएगा हाँ पेजेस, दिख रहा राइट। तो दिस विल बी योर है। पर पेज 2 में पेज 3 भी देगा। पेज 2 में पेज 2 का ही ऑप्शन रहेगा। एक्चुअल में क्या हुआ है कि वो फेसिंग पेजेस दिया है ना, और साइज जो है बिटमैप का बड़ा हो गया है। तो एक बार फिर से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्टार्ट ऑन राइट साइड ही चालू करेंगे। फेसिंग पेजेस ऑन रखो ताकि आपको आमने सामने ही फेसिंग दिखें। का मतलब क्या मतलब है एक्चुअली? दो पेजेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ये मतलब होगा। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ, और होल्ड करके आई जस्ट सेलेक्ट दिस वन, और ये तो ठीक जगह पे सेट है। तो इसको मैं लॉक कर देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज को मुझे फिक्स करना होगा, तो यहाँ से जाके कस्टमाइजेशन और डॉक्यूमेंट कस्टमाइजेशन बैकग्राउंड, और नो बैकग्राउंड करके, या बैकग्राउंड साइज कस्टमाइज साइज पे रख के 20 बाई 20 का है, तो बैकग्राउंड उतना इमेज ही खींच रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम इसको कोरल पे जाएंगे और डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, बैकग्राउंड साइज जो है वो नो बैकग्राउंड करेंगे। विल सी समथिंग लाइक दिस, क्योंकि कुछ साइज का डिफरेंस इसमें हुआ है। ओके क्योंकि पेज का साइज जो है वो बिल्कुल बढ़ा जा रहा है, हाइट और विड्थ का। पोर्ट्रेट 11, पेज का साइज बढ़ा जा रहा है कि अपन के जो कंटेंट और शेप्स है वो ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखो ना पेज लंबा नहीं दिख रहा, हाँ प्रिंटिंग पेज हाँ। पर पेज कितना होना चाहिए, मतलब आपने तो वो सिर्फ क्योंकि लेआउट चेंज किया तो साइज भी अपने आप बदल गया पेज का। साइज क्या है, लेआउट, क्योंकि डिज़ाइन का साइज तो बदलेगा नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा, है ना। केवल मेन इसका साइज
चेंज हो जाएगा। तो ये जो लेआउट का साइज़ है ये एक्चुअल में A3 साइज़ को लैंडस्केप में रखोगे ना तब ये बराबर साइज़ प्रिंट का आएगा सब जगह। अब ये डिवाइड हो चुका है दो भाग में, 1 2। तो अगर मुझे 1 2 पेजेस पे रखना है, अब ये जो है ये पेज नहीं है ना, याद रखना, कैनवस है, पेज नहीं है एक्चुअल में। दो तो क्या क्या पेज ही है ना। ये जो दिख रहा है ना ये पेज है, राइट, बट ये पूरा सिस्टम हाँ भी पेज कहलाता है, पेज 3 पेज 4 पेज 5, इसलिए हमने 4 पेज लिए थे तो 4 ही नहीं दिखाई देगा, एक एंडिंग पेज होगा, एक स्टार्टिंग नीचे पेज। वो नीचे वाला पार्ट खाली रहेगा क्या, कौन सा? कंक्लूजन रहेगा, जैसे ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड रहा, ये थर्ड रहा, ऐसे ये वाला एक तरफ का प्रिंट होगा, ये कौन सा है, इंडेक्स वाला सबसे ऊपर वाला, और ये है रहेगा सबसे नीचे वाला। हाँ, आई थिंक तुम लेट हो जाओगे, कैसे। तुम लेट हो जाओगी। ये कंप्लीट करके जाते हैं इसको ठीक है। कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ये इंडेक्स है, हाँ, इसका बाकी का पेज कहाँ है? ये वो पीछे वाला नहीं है, ये सबसे आखिरी वाला है। ये पेज लिंक कहाँ से है मालूम है? हाँ तो ये इसकी प्रिंटिंग होगी, ये वाली, ये वाली आगे वाला है, अच्छा ये इंडेक्स वाला है हाँ। ठीक है। और ये वाला जो है, पेज सॉरी, ये वाला है इंडेक्स वाला, और ये वाला तुम्हारा लास्ट पेज है। ऐसे साइमल्टेनियसली प्रिंट करेगा वो। तो जब बना होगा ना तो वो, अगर तुम इसको हाँ निकालोगी उससे तो वैसा वाला हो बनेगा, जाएगा। करेक्ट। कोई नहीं, इसको अच्छे से एक बार वापस से कर लेंगे। कर लेंगे, है ना। तो मेन ये है कि ये फ्रंट और आखिरी वाला पेज है, हाँ ये हैं तुम्हारे बीच के प्रिंट, हाँ मतलब ये बीच के ये पेज बीच है, वाले पेजेस हैं, ठीक है भाई। है ना, ये तुम्हारे बीच के पेजेस हैं। ऐसे बनाना ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा क्या, जो नॉर्मल कर से पेज बनाते चार हैं। वाले आप बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि सब एक सिंगल निकलेंगे प्रिंट में, और ऐसे वाला बनाओगे ना तो डबल डबल पेजेस में निकलेगा। तो आपके चॉइस के ऊपर आप कैसा कैसे, प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज ठीक है मुझे दिक्कत नहीं है पर तुम्हें दिक्कत होगा। ठीक है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी इसको मैं सेव कर देता हूँ, मैगजीन 001। हाँ इसी में पूरा बनाएंगे डन। इसको पूरा लेआउट को मैनेज करेंगे, ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।